Hello students, आज हम पढ़ेंगे Hearts and Hands, a short story by O. Henry from the Treasure Trove, a collection of short stories and poems by the ICSE. So इस short story में जो major theme है that is that appearances can be deceptive और एक side theme है जो कि humanity को दर्शाता है. So let's start it. At Denver, there was an influx of passengers into the coaches of eastbound B and M Express. So, at Denver, Denver एक जगह का नाम है जहाँ पर influx मतलब बहुत सारी कमोशन होना, COMMOTION. So एक कमोशन थी, पैसेंजर्स आ रहे थे, जा रहे थे into the coaches of B eastbound, B and M Express. Now very important, what was the name of the train or the express? It was B and M Express and eastbound. आप कीवर्ड है आप लगा सकते हो साथ में eastbound B and M Express. Eastbound means जो कि east के लिए चलती है. The train that is basically whose route is in the east. इसका बेसिक रूट जो होता है वो ईस्ट में होता है. सो इन वन ऑफ द कोचेज देयर सैट अ वेरी प्रिटी यंग वुमन dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comforts of an experienced traveler. So एक जो है कोच में उसके उस ईस्ट बाउंड बी एंड एम एक्सप्रेस के एक कोच में एक वेरी प्रिटी यंग वुमन थी एंड दिस आर द कीवर्ड्स that describe the woman. Very pretty young woman dressed in elegant taste. Elegant taste means बहुत ज़्यादा सुंदर से. elegant जो है उसने ड्रेस की हुई थी. एलिगेंट उसका टेस्ट मीन्स इसके मैनर ऑफ ड्रेसिंग वॉज एलिगेंट एंड सराउंडेड बाय ऑल द लग्जूरियस कम्फर्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस ट्रैवलर. एक्सपीरियंस ट्रैवलर मीन्स वो एक्सपीरियंस थी. मीन्स इसका मतलब है कि वो लग रहा था जैसे वो बैठी हुई थी और उसके साथ आसपास बहुत सारे लग्जूरियस कम्फर्ट्स थे, जिसका मतलब है उसको एक्सपीरियंस था कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड. सो वो उसके साथ थे लाइक द वाटर, लाइक अ कुशन, अ पिलो और समथिंग लाइक ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, दैट आर नेसेसरी. एंड वो एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर को पता होती है कि हाँ मैं रेगुलर ट्रैवल करता हूँ, आई नो एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड. Among the newcomers were two young men, one of handsome presence with a bold, frank countenance and manner. So among the newcomers, अब newcomers means उस कोच में जहाँ पर प्रिटी यंग वुमन बैठी हुई थी, वेरी प्रिटी यंग वुमन. सो उस कोच में दो न्यूकमर्स मीन्स दो लोग जो हैं दो एंटर करते हैं जब वो स्टेशन पे रुकी हुई थी. कौन से स्टेशन पे? डेनवर. वहाँ पर दो लोग एंटर करते हैं, दो न्यू कमर्स जो कि कौन थे? यंग मैन, बोथ वर यंग. वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस, उसमें एक जो था इट वॉज हैंडसम, उसका वो बहुत हैंडसम था. विद अ बोल्ड मीन्स जो है एक लाइक रफ एंड टफ बोल्ड. फ्रैंक काउंटेनेंस, फ्रैंक मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन एंड लाइक बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. फ्रैंक काउंटेनेंस बहुत ज़्यादा हंसमुख एंड मजाकिया. एंड मैनर, काउंटेनेंस मीन्स उसकी अपीयरेंस एंड मैनर मीन्स उसका जो था वे ऑफ टॉकिंग एंड एवरीथिंग. The other and the second person, like this is the description of the first person, this was the description of the first person, and it is required that you need to give the same keywords in your examination. There are bold, frank countenance and manner, handsome presence. These are the keywords. Okay. And the second person, he was ruffled, glum-faced person, heavily built and roughly dressed. Now he was ruffled means he was not very elegantly वो elegantly तैयार नहीं हुआ था. He was dressed very roughly. Ruffled, उसके like hair अच्छे नहीं थे, hair was not clean, everything was not in tidy. So everything was not in tidy condition, everything was ruffled. Glum faced person, glum means उदास था. Heavily built means उसने बहुत ज़्यादा body बनाई हुई थी. And roughly dressed, same. Ruffled means उसकी appearance ruffled थी and roughly dressed का मतलब भी same होता है almost. The two were handcuffed together. So दोनों handcuffed थे. Handcuffed means उनको हथकड़ियों से वो बंधे हुए थे. both the two young men. Okay, so next is as they passed down the aisle of the coach, the only vacant seat offered was a reversed one facing the attractive young woman. So as they passed down the aisle क्या होता है जब two seats होती हैं, like there are two rows of seats in a train. एक तरफ सीट्स हैं, दूसरी तरफ सीट्स हैं, बीच में जो रास्ता होता है जाने का उसे हम कहते हैं आयल. एस इज साइलेंट. सो लाइक वो कोच के आयल से गए एस और एक लाइक ओनली वैकेंट सीट, ओनली वन, देयर वाज ओनली वन, एक ही वैकेंट सीट थी. वैकेंट मीन्स खाली सीट जो उनको ऑफर की गई, लाइक दैट वाज अवेलेबल was a reversed one. एक रिवर्स थी facing the attractive young woman. रिवर्स हुई थी स्ट्रीट और सीट और किसको फेस कर रही थी? attractive young woman. सो अट्रैक्टिव यंग वुमन जो थी, जो हमने पहले डिस्क्राइब की थी, हमने पहले पढ़ी थी, उसको फेस कर रही थी वो सीट. मीन्स दे वर जस्ट ऑपोजिट. लाइक हम ट्रेन में बैठते हैं, एक सीट होती है, दूसरे को फेस कर रही होती है. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैट.
Here the linked couple क्यों किया गया है? Because there were two people who were linked or who were handcuffed together. उनको बंधे हुए थे वो by हथकड़ियाँ, so by handcuffs. Seated themselves, और वहाँ पर आके बैठ गए. उनके सामने कौन थी? Attractive young woman, और वो उसकी सामने वाली सीट पे आके बैठ गए. So the young woman's glance fell upon them with a distant, swift disinterest. Very important. अब कैसे उसकी उसने देखा उनको, glance means उसकी sight. So उसने देखा that young couple, जो young couple means the linked couple था, the two people जो थे, two young men, जब वो हाथ कड़ी से बांधे जो आए, उसने उनको देखा विद अ डिस्टेंट स्विफ्ट. डिस्टेंस मीन दूर से ही देखा, जैसे हम किसी को जब कोई निकलता है हमारे पास से, हम उसको दूर से जस्ट देखते हैं. विद स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स जल्दी से. डिसइंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको में देखने में. हम देखते हैं कौन गया, ऐसे कौन गया, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता जानने में कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है. ऐसी हमारी नज़र पड़ जाती है, जैसी वैसी नज़र पड़ जाती है, विदाउट एनी कोई हमें कॉशियसली और या हम कोई एम्फेसिस पा के नहीं देखते, जस्ट डिसइंटरेस्ट में ही हमारी नज़र पड़ जाती है. सो उसको हम कहेंगे, उसको यहाँ पर कहा गया है डिस्टेंट स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट. डिस्टेंट मीन दूर से ही उसने ऐसी नज़र घुमा के देखा कि हम कोई जा रहा है, कौन आया, ऐसी मेरे सामने वाली सीट पे कोई आके बैठा है, हमने वैसे देख लिया कौन आके बैठा है. हम भी देखते हैं जब ट्रेन में आया कोई सामने सीट हमारी सामने वाली सीट पे आके बैठा है, हम ऐसी डिसइंटरेस्ट से देखते हैं, विदाउट एनी कि हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि हमने कौन आया, या लाइक हम जब कुछ हम किसी को जानते होते हैं तो हमें इंटरेस्ट होता है कि हाँ कौन आया है, अब वो आ गए कि नहीं आए. सो डिस्टेंस डिसइंटरेस्ट मीन्स पता नहीं, ऐसी लाइक जस्ट हमने ग्लैंस उसके ऊपर मार दी, नजर मारी जैसे. देन विद अ लवली स्माइल ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस एंड अ टेंडर पिंक tinging her rounded cheeks, she held out a little grey gloved hand. So now यहाँ पर ग्रे की स्पेलिंग देखना, GRAY है. So these were not permitted in your boards because GRAY is an American spelling of grey. ब्रिटिश इंग्लिश में जो है GREY होंगे, और वी हैव टू राइट ब्रिटिश इंग्लिश इन द बोर्ड, सो ओनली ब्रिटिश इंग्लिश इज परमिटेड. सो GREY विल बी द स्पेलिंग दैट यू विल बी राइटिंग. सिंस ओ हेनरी जो है वो एक अमेरिकन ऑथर है, सो उनके स्पेलिंग GRAY हैं. ओके, सो विद अ लवली स्माइल ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस. लवली स्माइल, अब जैसे उसने पहले उसने डिसइंटरेस्ट से देखा, और एकदम से उसकी जब उसने देखा ना कि लाइक हाँ वो चले गया, उसने नज़र हटा ली, एकदम से उसने दोबारा देखा उनकी तरफ, जैसे कि उसको पहचानते हैं. दोबारा देखा उस लेडी ने विद लवली स्माइल. अब उसको खुशी हुई, एक लवली स्माइल देके अपनी ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस. उसकी जो काउंटेनेंस क्या होता है? अपीयरेंस. काउंटेनेंस मीन्स उसके फेस के एक्सप्रेशंस. अब वो ब्राइट हो गए, उसका फेस बहुत ब्राइट हो गया. एंड अ टेंडर पिंक टेंडर पिंक, उसकी चीक्स बहुत पिंक सी हो गई. टिंज होता है थोड़ा सा हल्का सा पन आ गया, पिंक कलर का ग्लो सा आ गया उसके फेस पर, चीक्स पर. शी हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लव्ड हैंड. अब उसको लिटिल मीन्स उसको कहा गया कि बहुत पतला सा ग्रे ग्लव्ड, उसने ग्लव्स पहने हुए थे अपने हैंड्स पर, जैसे पहनते होते हैं, लाइक वेरी रॉयल, इट शोज रॉयल्टी. ग्रे ग्लव्ड हैंड उसने अपना क्यों हेल्ड आउट मीन्स उसने निकाला. क्यों निकाला? ऑब्वियसली टू चेंज द प्लेजेंट्रीज मीन्स उसने हेलो करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ निकाला. हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लव्ड हैंड. ओके. When she spoke, her voice, full, sweet and deliberate, proclaimed that its owner was accustomed to speak and be heard. अब जब वो बोलती थी, उसकी वॉइस फुल, बहुत अच्छी थी, फुल, पूरी सुनाई देती थी, ऑडिबल, स्वीट, बहुत प्यारी थी, एंड डेलिब्रेट मीन्स बहुत अच्छे से, लाइक एक वर्ड समझ आ रहा था, नहीं बोल रही थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी. हेलो, हाउ आर यू, लाइक दैट. प्रोक्लेम दैट इट्स ओनर, प्रोक्लेम, अब इसकी वॉइस प्रोक्लेम करती है, ये इसकी जो वॉइस थी वो बताती थी कि इसका ओनर मीन्स ये खुद यंग लेडी जो है, ये यंग वुमेन है, जो इसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, एंड बी हर्ड, और इसको सुने, ये चाहती है कि मैं ही बोलूँ और मेरी बात सुनी जाए. इसको लोगों को अपनी बात सुनाने की और बोलने की बहुत आदत है, ये बताती थी इसकी वॉइस. ओके, सो अब पहले उसने ऐसे देखा डिसइंटरेस्टेड, फिर एकदम उसको लगा कि कोई जाना पहचाना आया. उसने स्माइल से ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस, ठीक है, अच्छे से टेंडर पिंक सबसे अच्छे से देखा और हाथ मिलाया और बोली. उसको क्या बोली अब? वेल मिस्टर ईस्टर्न, इफ़ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट, आई सपोज आई मस्ट. डोंट यू एवर रिकॉग्नाइज ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट. अब वो क्या कहती? वेल मिस्टर ईस्टर्न कौन है मिस्टर ईस्टर्न? वन ऑफ द टू पर्सन, ऑब्वियसली द टू पर्सन जो आके उसके सामने बैठे हैं उनमें से एक है मिस्टर ईस्टर्न. अब कौन है वो आगे पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा. सो मिस्टर ईस्टर्न एक है उनमें से. इफ़ यू मेक मी स्पीक फर्स्ट, अगर तुम मुझे पहले बोलने का मौका दोगे, आई सपोज आई मस्ट, लाइक मुझे ही मिलना चाहिए मौका पहले, लाइक मुझे ही सबसे पहले बोलना चाहिए, ऐसे कह दिया उसने. लाइक बिकॉज क्यों कहा? बिकॉज शी वॉज अकस्टम्ड टू स्पीक एंड बी हर्ड. डोंट यू एवर रिकॉग्नाइज ओल्ड फ्रेंड्स, कहते तुम
कभी तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते, तुम पहचानते नहीं अपने ओल्ड फ्रेंड्स को जब तुम हमें वेस्ट में मिलते हो. लाइक ईस्ट बाउंड मीन्स, अब हमने कहा था ईस्ट बाउंड ट्रेन है, अब ये वेस्ट में है, ये वेस्ट में आए हुए हैं, डेनवर इज इन वेस्ट बट गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट बाउंड मीन्स अब ये ईस्ट के लिए रवाना होगी ट्रेन. द ट्रेन विल बी गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट बाउंड, ईस्ट के लिए निकली है ये ट्रेन. अब वो कहती है जब हम वेस्ट में मिलते हैं तो क्या आप मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते अपने ओल्ड फ्रेंड को जब आप उनको वेस्ट में मिलती हो. बिकॉज इसका मतलब क्या है कि उनमें से जो एक पर्सन है उसका नाम मिस्टर ईस्टन है और वो इस यंग लेडी का फ्रेंड है. सो एक ओल्ड फ्रेंड है, अभी अब उनकी बात नहीं होती होगी, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द यंग लेडी. सो द यंगर मैन, अब उन दोनों में से एक यंगर जो मैन था, राउज्ड हिमसेल्फ शार्पली एट द साउंड ऑफ हर वॉइस, एकदम खड़ा हो गया शार्पली एट द साउंड ऑफ हर वॉइस. उसकी जब जैसे उसने उसकी आवाज़ सुनी, मतलब उसको जाने पहचानी आवाज़ लगी, एकदम खड़ा हो गया वो. सीम टू स्ट्रगल विद स्लाइट एम्बेरसमेंट विच ही थ्री ऑफ इंस्टेंटली. अब उसको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई. क्यों हुई एम्बेरसमेंट, हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये स्टोरी बहुत सस्पेंस वाली है. इसमें आपको सस्पेंस के एलिमेंट्स मिलेंगे, एंडिंग तक बहुत मज़ा आएगा. बहुत अच्छी स्टोरी है, वन ऑफ माई ओन फेवरेट्स. सो डोंट यू एवर, ओके सॉरी हम पहुंच गए थे. यस, सीम टू स्ट्रगल विद स्लाइट एम्बेरसमेंट. अब उसने थोड़ी सी एम्बेरसमेंट लाइक उससे लगी, थोड़ी सी उसने एम्बेरसमेंट लगा उसके, जब उसने अपना हाथ लाइक पहले उसको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही थी, जो उसने एम्बेरसमेंट बड़ी जल्दी छोड़ दी, इंस्टेंटली थ्री ऑफ छोड़ पा रहा था. क्या क्या एम्बेरसमेंट करना, अब क्या एम्बेरस फील करना, क्यों एम्बेरसमेंट हो रही थी हम आगे पढ़ेंगे. एंड देन क्लैस्प्ड हर फिंगर्स विद हिज लेफ्ट हैंड. अब उसकी फिंगर्स को क्लैस्प किया अपने लेफ्ट हैंड से. अब लेफ्ट हैंड से क्लैस्प क्यों किया, पूरा हाथ क्यों नहीं मिलाया, सिर्फ उसकी फिंगर्स को उसने सॉरी जो यंग लेडी थी उसकी फिंगर्स को सिर्फ उसने क्लैस्प किया. क्यों क्लैस्प किया, बिकॉज जो हम हैंड शेक करते हैं हमेशा राइट हैंड से करते हैं. सो कभी भी लेफ्ट हैंड से हैंड शेक नहीं करते. सो इट इज़ नॉट अ गुड मैनर्स, लाइक इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ कर्टसी कि आप जो है अपने लेफ्ट हैंड से हैंड शेक करें. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड. सो उसने सिर्फ क्लैस्प किया एज उसको एम्बेरसमेंट हो रही थी, एम्बेरसमेंट से उसने थोड़ा सा झिझक रहा था वो, इसलिए उसने सिर्फ क्लैस्प किया, हैंडशेक नहीं किया. अब बताएगा क्यों मैंने लेफ्ट हैंड से आपको आपके फिंगर्स क्लैस्प की, और ठीक है इसी हमें पता लगेगा एम्बेरसमेंट क्यों हो रही है. इट्स मिस फेयरचाइल्ड ही सेड विद अ स्माइल. ओ ये तो मिस फेयरचाइल्ड है. अब यंग लेडी का नाम पता लग गया हमें. यंग लेडी कौन है, मिस फेयरचाइल्ड. समझ आ रही है ना स्टोरी. जैसे उसने बोला कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स को नहीं करते, अब एकदम वो खड़ा हो गया उसकी आवाज़ पे, ओहो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई उसे, फिर उसने उसकी फिंगर्स को क्लैस्प किया लेफ्ट हैंड से और फिर बोला इट्स मिस फेयर चाइल्ड, तो मिस फेयर चाइल्ड है. विद अ स्माइल उस खुशी से बोला, आई आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड, इट्स अदरवाइज एंगेज्ड जस्ट एट प्रेजेंट. अब वो कहता कि मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ मेरे अदर हैंड को, मीन्स मेरे राइट हैंड को एक्सक्यूज़ कर दें. आई एम वेरी सॉरी है वो, मैं राइट हैंड से आपको नहीं हाथ मिला रहा. इट्स अदरवाइज एंगेज्ड जस्ट एट प्रेजेंट. कुछ एंगेज मीन्स कुछ किसी चीज़ से रोका हुआ है, लाइक इट्स बिजी है ये मेरा अदर हैंड. अब क्या बिजी है वो हम आगे पढ़ेंगे. He slightly raised his right hand, bound at the wrist by shining bracelet, to the left of his companion. अब क्या हुआ, उसने अपना जब राइट हैंड उसको उठा के दिखाया, सो क्या था उस पर, बाउंड एट द रिस्ट. अब उस रिस्ट में उसका राइट हैंड जो था रिस्ट से बंधा हुआ था, बाय द शाइनिंग ब्रेसलेट टू द लेफ्ट ऑफ हिज कंपेनियन. उसका कंपेनियन जो था, कंपेनियन कौन था, जो अदर यंग मैन जो भी होगा, मिस्टर ईस्टन के साथ वाला जो यंग मैन था. अब उसके कंपेनियन से उसने लाइक इस जो मिस्टर ईस्टन है, मिस्टर ईस्टन का राइट हैंड जो था उसमें ब्रेसलेट किसको कहा गया है, हथकड़ी को. शाइनिंग ब्रेसलेट इज द हैंड कफ, हथकड़ी को यहाँ पर शाइनिंग ब्रेसलेट कहा गया है. अब इस हथकड़ी लगी हुई थी इसके कौन से हाथ में, राइट हैंड में इसकी हथकड़ी लगी हुई थी, और लेफ्ट हैंड के साथ उसके लगी थी. दोनों के एक एक हाथ में हथकड़ी, हमने पहले पढ़ा था ना, बोथ वर हैंड कफ टुगेदर. सो इसके राइट हैंड में हथकड़ी थी और उसके लेफ्ट हैंड में थी, तो एक दूसरे को इन्होंने बांधा हुआ था हथकड़ी से. सो इसलिए ये थोड़ा सा क्या कहते हैं एम्बेरस था, एंड इसलिए ही जो है ये लेफ्ट हैंड से इसने जो था हाथ में लाया, बिकॉज इसका राइट हैंड बिजी था. क्या बिजी था, क्योंकि इट वॉज टाइड, इट वॉज बाउंड एट द रिस्ट बाय द शाइनिंग ब्रेसलेट टू द लेफ्ट ऑफ हिज कंपेनियन. इसका कंपेनियन जो था, जो अदर मैन था, दूसरा यंग मैन जो था, सो उसके साथ बंधा हुआ था. द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स आई स्लोली चेंज इन द बिविल्डर्ड हॉरर. उससे लगा कि तो ये चोर है, इसका हथकड़ी बांधी है, मतलब ये तो क्रिमिनल है. ठीक है, सो एकदम जो ग्लैड लुक था, पहले गर्ल्स बड़ी सॉरी यंग वुमन जो थी, इसको अब गर्ल कहा गया है, वो बड़ी खुश हुई थी ना पहले अपने ओल्ड फ्रेंड को मिलके, जिसका नाम क्या है, मिस्टर ईस्टन. सो मिस फेयरचाइल्ड जो थी वो बहुत पहले खुश हुई थी अब मिस्टर ईस्टन को मिलके.
फिर जब देखा कि उसका तो हथकड़ी बंधी हुई है, फिर उसके एकदम जो था बिविल्डर्ड हॉरर मीन्स अजीब सा एक हॉरर उसके आंखों में आ गया। द ग्लो फेडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द जो है इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज। इसको हम कहते हैं चेंज उसके एक्सप्रेशंस में। मिस फेयर चाइल्ड के एक्सप्रेशंस में जो चेंज आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसके एक्सप्रेशंस क्या थे, ग्लैड लुक उसकी ग्लैड लुक किस में चेंज हुई, बिविल्डर्ड हॉरर में। अब ग्लो हमने पहले पढ़ा था, उसकी चीक्स पे ग्लो आ गया था, वो फेड, अब फेड हो गया, ग्लो उतर गया उसकी चीक से। हर लिप्स पार्टेड इन वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस। पार्टेड मीन्स अलग हो गए, जैसे हम कहते हैं हाँ, ऐसे हमारे जो लिप्स पहले बंद थे फिर एकदम अलग हो गए, खुल गए उसके, हाँ ऐसे। सो वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस, इसका एकदम से उसको हाँ ये क्या हुआ, लाइक सो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसको हॉरर, बहुत सारा उसको शॉक लगा। उसमें उसके जो लिप्स है पार्ट हो गए इन वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस में। ईस्टर्न विद अ लिटिल लाफ, अब छोटा सा लाइक ऐसे थोड़ा सा हंसा और कहता एज इफ अम्यूज्ड मीन्स जैसे खुश हुआ, आप कुछ बताना चाह रहा है, लाइक क्लियर करना चाह रहा है कोई बात। वॉज अबाउट टू स्पीक अगेन विद द वैन द अदर फोरस्टॉल्ड हिम। अदर मीन्स जो साथ में सेकंड यंग मैन था, मिस्टर ईस्टर्न के साथ जो था यंग मैन, सब वो अब वो उसको उसने एकदम बीच में इंटरप्ट कर दिया। फोरस्टॉल्ड मीन्स बीच में इंटरप्ट किया, हिम उसको स्पीक बोलने से पहले इसको इंटरप्ट कर दिया। वो कुछ बोलने लगा था, कुछ समझाने लगा था मिस फेयर चाइल्ड को, साथ में उसने इंटरप्ट कर दिया। क्या कहता, द ग्लम फेस्ड मैन हैड बीन वॉचिंग। अब यहाँ पर पता लगता है कि मिस्टर ईस्टर्न कौन सा था। अब मिस्टर ईस्टर्न की हमने पहले पढ़ा था, लाइक यहाँ पर हमने पढ़ा था पहले के दो थे। वन वॉज फ्रैंक काउंटेनेंस इन मैनर, हैंडसम था, फ्रैंक काउंटेनेंस मैनर थी इसकी। और दूसरा जो था वो ग्लम फेसेड था, दूसरा ग्लम फेसेड था। मीन्स अब ये क्या कर रहे हैं, ग्लम फेसेड मैन दूसरा है। अब मिस्टर ईस्टर्न कौन था, फ्रैंक वाला, हैंडसम फ्रैंक काउंटेनेंस एंड मैनर जो था, वो वाला जो था, ही वॉज मिस्टर ईस्टर्न। एंड दूसरा जो था जिसका हमने नाम नहीं यहाँ पर बताया हुआ, वो ग्लम फेसेड था, रफली हेविली बिल्ट एंड रफली ड्रेस्ड, वो सेकंड पर्सन है। ठीक है, सो अब जिसने बीच में रोका है वो है ग्लम फेसेड मैन। एंड ही हैड बीन वॉचिंग द गर्ल्स काउंटेनेंस विद वेलेड ग्लैंसेस फ्रॉम हिज कीन श्रीव्ड आइज। वेलेड ग्लैंसेस, छुपी छुपी आंखों से वो गर्ल्स की काउंटेनेंस, उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था, गर्ल के, वो मिस फेयर चाइल्ड के एक्सप्रेशंस देख रहा था वो ग्लम फेसेड मैन, छुपी छुपी आंखों से। वेलेड ग्लैंसेस मीन्स ऐसे, ठीक है, फ्रॉम हिज कीन मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, श्रीव्ड आइज, श्रीव्ड मीन्स गंदी आंखें, अपनी कीन बहुत ज़्यादा अजीब सी आंखों से वो देख रहा था, छुपी लाइक छुपे में देख रहा था उसको, लाइक सीक्रेटली उसको देख रहा था। किसको मिस फेयरचाइल्ड को, नो हाँ मिस फेयरचाइल्ड को ही देख रहा था, बट द कीवर्ड इज मिस द गर्ल्स काउंटेनेंस, मतलब मिस फेयरचाइल्ड की काउंटेनेंस, उसके एक्सप्रेशंस को देख रहा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग मिस, अभी कौन बोल रहा है, ग्लम फेसेड मैन, हम इसको ग्लम फेसेड मैन बोलेंगे। सो तीन कैरेक्टर्स हमें हमारे पास आ गए हैं। मिस्टर ईस्टर्न जो कि हैंडसम फ्रैंक काउंटेनेंस एंड मैनर वो वाला है, ग्लम फेसेड मैन जिसकी डिस्क्रिप्शन हमने पहले देखी, सेकंड है जिसका लेफ्ट हैंड के साथ बंधा हुआ है, मिस्टर ईस्टर्न के साथ बंधा हुआ है जो सेकंड पर्सन है वो ग्लम फेसेड मैन, और थर्ड कौन है, मिस फेयर चाइल्ड। अब ये ग्लम फेसेड मैन कहता, यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग मिस, बट आई सी यू आर एक्वाइंटेड विद द मार्शल हियर। मार्शल, अब कहता है यहाँ पर मुझे प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज करना, मैं बीच में इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ। मिस किसको कह रहा है, मिस फेयर चाइल्ड को कह रहा है। हु सेड टू हुम, द ग्लम फेसेड मैन सेड टू द नहीं आएगा, सॉरी, द ग्लम फेसेड मैन सेड टू मिस फेयर चाइल्ड। ओके, यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग, अब मुझे एक्सक्यूज करना प्लीज, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई सी यू आर एक्वाइंटेड मीन्स फेमिलियर, लिख लो कीवर्ड, एक्वाइंटेड मीन्स फेमिलियर आ सकता है। सो फेमिलियर मीन्स जान पहचान है आपकी, आप जानते हो इस मार्शल को। मार्शल, अब मिस्टर ईस्टर्न क्या है, मार्शल, किसने बताया यहाँ पर, किसने बताया, ग्लम फेसेड मैन ने बताया कि मिस्टर ईस्टर्न जो है वो मार्शल है। यहाँ पर मार्शल क्या होता है, मार्शल एक इज अ पोस्ट इन पुलिस। सो आईपीएस में एक पोस्ट है मार्शल, इंडियन सॉरी आईपीएस में नहीं है, यहाँ पर अमेरिकन पुलिस है। सो जो भी है, डेनवर इज इन अमेरिका, सो अमेरिकन में पुलिस में लाइक इट्स अ पोस्ट मार्शल। ओके, सो एक बहुत बढ़िया हाई रैंकिंग पोस्ट है मार्शल। ओके, इफ़ यू विल आस्क हिम, नॉट हाई रैंक, बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग भी नहीं है पर है, अच्छी पोस्ट है। इफ़ यू विल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी व्हेन वी गेट टू द पेन, ही विल डू इट। पेन क्या होता है, प्रिजन, पेन मीन्स द प्रिजन, प्रिजन का एक, हाँ यहाँ प्रिजन ही समझ लो, पेन एक प्रिजन को समझ लो। वैसे इट्स लाइक अ सेल इन अ प्रिजन, सो पेन इज अ प्रिजन, and it will make things easier for me there. He's taking me to Leavenworth prison. It's 7 years for counterfeiting. अब
पूरा अच्छे से समझते हैं हम ये क्या कह रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, एक छोटे से पैरे में जो इसने बोला है इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। सो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहता है ये मैं देखता हूँ कि आप यहाँ इस मार्शल को जानते हो जो कि मिस्टर ईस्टन है। मिस्टर ईस्टन इज एन मार्शल, हमें ये पता लगा पहले। उसको जानता है, कौन जानता है? मिस फेयरचाइल्ड जानती है। सो ये कौन कह रहा है? ग्लमफेसन मैन कह रहा है। एंड यू अगर तुम उसे कहोगे, इफ़ यू विल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी, अब मेरे लिए थोड़ी सी हमारी जो है थोड़ा सा हमें रेफर कर दे, हम कहते हैं ना लोग, सो हमारे लिए थोड़ा वर्ड में हमें कुछ कह दे, हमारे लिए कुछ बोल दे वहाँ पर प्रिजन में, जब जब हम प्रिजन में जाएंगे। सो इससे प्लीज़ कहो कि वहाँ जाके मेरे लिए कुछ कह दे थोड़ा सा, ठीक है? तो मेरे लिए थोड़ी सी थिंग्स ईजियर हो जाएंगी प्रिजन में। हम प्रिजन में रहना कितना औखा है, कितना मुश्किल है प्रिजन में रहना। सो कहता है मैं मुझे प्रिजन में लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं और कौन सी प्रिजन में लेकर जा रहे हैं, आगे बताया इसने। ही इज टेकिंग मी टू लेवनवर्थ प्रिजन। लेवनवर्थ प्रिजन का नाम है हेवन। हेवन का स्पेलिंग क्या होता है? HEAVEN, वैसे LEAVEN 11। वर्थ WR वर्थ के स्पेलिंग आपको आते हैं, स्पेलिंग्स याद कर लेना बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है 11 वर्थ प्रिजन में अच्छे से स्टूडेंट्स की भी। इट्स 7 years फॉर काउंटरफीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने साल है? 7 years। काउंटरफीटिंग, काउंटरफीटिंग क्या होता है? काउंटरफीटिंग वो जुल्म होता है जिसमें लोग जो है, काउंटरफीट मीन्स एक नकली, डुप्लीकेट विदाउट एनी परमिशन, एक क्रिमिनल होता है, लाइक इलीगली क्या करते हैं, डुप्लीकेट, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बनाते हैं। यहाँ पर काउंटरफीटिंग रेफर किया गया है। वैसे अब अगर अब व्हाट इज द काउंटरफीटिंग, वैसे काउंटरफीटिंग क्या होता है आपने वो लिखना है, साथ में यहाँ पर कहाँ किसके लिए रेफर किया गया है वो भी लिखना है। सो यहाँ पर काउंटरफीटिंग का मतलब है नकली मनी बनाना। अब एक ऑब्वियसली इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, इट्स इलीगल। क्या आप नकली जो है, डुप्लीकेट जो है मनी बना रहे हो, मनी। सो इसको हम काउंटरफीटिंग कहेंगे। काउंटरफीटिंग मीन्स डुप्लीकेट, सो है जो है मनी, फेक मनी जो है वो बनाना, उसको हम कहते हैं काउंटरफीटिंग, मेकिंग फेक बिल्स और फेक मनी, सो विच इज़ इलीगल एक्ट। सो इसके लिए सज़ा हो रही है कितने सालों की? 7 years की। किसको सज़ा हो रही है? ग्लमफेसन मैन को। अब ग्लमफेसन मैन को 7 years के लिए सज़ा हो रही है काउंटरफीटिंग के लिए। उसको 11 वर्ष प्रिजन लेकर जाया जा रहा है और वो कहता है मिस फेयरचाइल्ड को कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ कह दो, थोड़ा सा कुछ बोल दो इसको, मार्शल को, यहाँ पर जो मार्शल है मिस्टर ईस्टर्न, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा वहाँ पर, है ना। ओ सेड द गर्ल, अब वो कहता, अब उसे सब कुछ समझ आया गर्ल को। अच्छा, ओ सेड द गर्ल विद अ डीप ब्रेथ एंड रिटर्निंग कलर। अच्छा, इसको, ये मार्शल है और इसको लेकर जा रहा है विद अ डीप ब्रेथ एंड रिटर्निंग कलर। डीप ब्रेथ, अब ये है सेकंड चेंज इन एक्सप्रेशन। जब उसने ग्लमफेसन मैन ने बताया सब कुछ, तब मिस फेयरचाइल्ड में क्या चेंज आई? शी सेड ओ विद अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ मीन्स सुख का सांस लिया उसने, ठीक है। एंड रिटर्निंग कलर, सांस ली इसने, अच्छे से आराम से सांस ली। विद एंड रिटर्निंग कलर, अब उसका जो कलर है वो वापस आ गया, चीक का ग्लो वापस आ गया। सो दैट इज वट यू आर डूइंग आउट हियर, अ मार्शल। अब कहते हैं अच्छा तो मार्शल हो यहाँ पर, अच्छे ये कर रहे हो आप। माई डियर मिस फेयरचाइल्ड, अब ईस्टर्न बताता है, ईस्टर्न एक्सप्लेन करता है अच्छे से। माई डियर मिस फेयरचाइल्ड, आई हैड टू डू समथिंग कामली आराम से एक्सप्लेन करता है। Miss Fairchild, I had to do something. Money has a way of taking wings onto itself, and it takes money to keep a step with our crowd in Washington. अब वो कहता है कि हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, जॉब तो कोई तो जॉब करनी पड़ेगी मुझे। Money has a way of taking wings onto itself, का मतलब है मनी जो है अपने आप ही उड़ जाती है, पता नहीं लगता हमें हमारी जेबों में से कब उड़ जाती है, अपने पंख आप ही लगा लेती है, खुद ही अपने पंख लगा लेती है और उड़ जाती है। इसका मतलब है कि पता नहीं चलता हमें मनी कब खत्म हो गई हमारे पास। मनी हमें चाहिए, हर चीज़ जो खरीदनी है हमें मनी चाहिए, मनी खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता हमें। सो एंड इट टेक्स मनी टू कीप अ स्टेप विद आवर क्राउड इन वाशिंगटन। अब आपको ये भी पता है कि हमें मनी चाहिए होती है, पैसा होगा तो हम अपना जो है कदम से कदम मिला के चलेंगे। कहाँ पर? लोगों को, वाशिंगटन कितना महंगा है, और क्राउड हमारी, मतलब जो लोग हैं वहाँ पर, उनके अगर हमें वाशिंगटन स्टैंडर्ड से जीना है, वहाँ पर हमने अच्छे से अच्छी लाइफ जीनी है, तो अच्छी सी लाइफ जीने के लिए हमें मनी तो चाहिए होती है। कुछ काम करना था, मैंने आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। ओपनिंग मीन्स अपॉर्चुनिटी, ये मुझे मौका मिला वेस्ट में। सो एंड वेल मार्शलशिप इज इन क्वाइट, तो इसलिए मैंने कर लिया। एंड वेल, अब उसने क्या कहा आगे? वेल मार्शलशिप इज इन क्वाइट हाई अपोस्ट पोजीशन एज दैट ऑफ एन एम्बेसडर। एम्बेसडर अब क्या होता है? एम्बेसडर मार्शल से भी ऊपर होता है, मार्शल से भी ऊपर एम्बेसडर। सब अब वो कहता कि देखो मार्शलशिप जो है इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है ना, एम्बेसडर जितनी बड़ी पोस्ट तो नहीं है, पर कुछ तो करना था, मैंने ये कर लिया, मार्शल बन गया। वो इतनी बड़ी पोस्ट तो नहीं है एम्बेसडर जितनी, एम्बेसडर जिससे भी बड़ा होता है। सो पर चलो, मैंने ऐसे देखा मनी चाहिए थी तो मैंने कर ली जॉब। समझा रहा है वो, कौन समझा रहा है? मिस्टर ईस्टर्न। द एम्बेसडर सेड द गर्ल वार्मली, इसने वार्मली कहा, ये कीवर्ड कह सकते हो आप वैसे। इतने कैसे कहा? कामली का, वार्मली का, उसने इतनी ज़्यादा कीवर्ड्स तो आते नहीं है वैसे।
ये वाली चीज़ें नहीं पूछते हैं. सो कहती है, अब वो गर्ल क्या कहती है, द एम्बेसडर डजंट कॉल एनी मोर. मतलब एम्बेसडर से ऊपर क्या होगा, एम्बेसडर को तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता एम्बेसडर. लाइक बड़ी पोस्ट तो होती है, मनी मिल जाती है अच्छी ज़्यादा खासी, इसको पैसे भी मिलेंगे एम्बेसडर को, बट एम्बेसडर की लाइफ क्या कैसी नहीं होती है आगे वो बताएंगे. ही नीडंट एवर हैव डन सो. कैसा, अब कहता एम्बेसडर ने तो ये सारे काम किए भी नहीं होंगे. कैसे काम, अब वो आगे बताएगा. एंड यू ऑट टू नो दैट, हम आपको पता है कैसे सारे काम, जैसे हम आप क्रिमिनल्स को पकड़ के लेकर जा रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो आप. इन्वेस्टर तो बैठे रहते हैं, ऐसे थोड़े काम, ऐसे बड़े बड़े काम थोड़ा करता है, ऐसे अच्छे मज़ेदार काम थोड़ा करता है. एंड यू नो यू आर वन ऑफ दिस डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, and you ride and shoot and go into all kind of dangers that's different from the Washington life. You have been missed from the crowd, old crowd. Okay, अब वो कहते हैं कि हाँ एम्बेसडर से बड़ा, अब एम्बेसडर से बड़ा क्या होता है. सो एम्बेसडर ने तो ये इतना ज़्यादा काम किए भी नहीं होंगे. लाइक आप जो है इतने, अब नाउ यू आर द डैशिंग वेस्टर्न हीरोज. डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, अब तो बड़े ज़्यादा हट्टे कट्टे डैशिंग वेस्टर्न हीरोज जैसे हो. अब तो कितने अच्छे अच्छे जैसे वेस्टर्न हीरोज हम मूवीज़ में देखते हैं वैसे आप हो, वैसे काम करते हो. लाइक यू राइड, आप राइड करते हो, शूट करते हो क्रिमिनल्स को, और सारे डेंजर्स में जाते हो, क्रिमिनल्स को पकड़ते हो. तो कितना मज़ेदार काम है, कितना एडवेंचरस है. उसे ये बहुत अच्छा लगता था किसी मिस फेयर चाइल्ड को. सो एम्बेसडर ने तो बस अपनी सीट पे बैठे रहना है और कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं उसे. लाइक उसे भी काम होते हैं बट उसे इतनी ज़्यादा एडवेंचरस काम करने का मौका नहीं मिलता. सो ही डजंट कॉल एनी मोर. क्लियर, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वाशिंगटन. और ये वाशिंगटन लाइफ, वाशिंगटन के लोगों जो से हम आम लोग जो है रहते हैं उनसे तो कितना डिफरेंट है, और आपको सभी मिस करते हैं. अब ओल्ड क्राउड कौन सी है, ओल्ड क्राउड मीन्स ओल्ड इनका जो फ्रेंड सर्कल था, ठीक है, वो सारे फ्रेंड्स अब मिस करते हैं मिस ईस्टर्न को. हाँ सारे, अब सारे जो फ्रेंड्स अलग अलग हो गए हैं अपने, जो भी था स्टडीज़ के बाद, एवरी लाइक वट एवर इट वॉज, वहाँ पर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया. सो वट एवर इट वॉज, उसके बाद सारे अलग अलग हो गए. सो ये सभी मिस करते हैं मिस्टर ईस्टर्न को. सारे कई लोग तो इकट्ठे इकट्ठे रहते होंगे वहाँ पर, साथ में होंगे, पर मिस्टर ईस्टर्न अब यहाँ पर आ गया है, वेस्ट छोड़ के अब कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर सॉरी ईस्ट छोड़ के वेस्ट में आ गया है. सो वहाँ पर सारे लोग कहते हैं आपको मिस करते हैं. वॉशिंगटन ईस्ट में है अमेरिका के, ये वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आगे. द गर्ल्स आइज fascinated went back, widening a little to rest upon the glittering handcuff. अब उसे बहुत fascination, अब उसे fascination means बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. लाइक वाह क्या कितनी अच्छी जॉब करता है ये मार्शल. पर एकदम साथ में उसकी साइट दोबारा, उसकी साइट मीन्स उसकी आइज़, उसकी जो थी आइज़ कहाँ पर पड़ी, नज़र कहाँ पर पड़ी दोबारा, वाइडनिंग लिटिल, वाइडनिंग हैरान होने वाली नज़रें जो हैं वापस पड़ी कहाँ पर, हैंड कफ्स पर. उसकी ग्लिटरिंग सिल्वर कलर के थे ना, ग्लिटरिंग शाइनिंग हैंड कफ्स पर पड़ी, और उससे अभी दोबारा डर सा लग रहा, थोड़ा सा डर आ गया. वाइडनिंग लिटिल, वाइडनिंग में थोड़ी सी शॉक से, थोड़ा सा ना हॉरर से थोड़ी सी वाइड हो गई, थोड़ी सी ऐसे बड़ी हो जाती है ना आंखें, यार क्या है, कुछ तो है इसमें यार, इसने पर इसने इतना मार्शल है पर इसने हथकड़ी क्यों डाली हुई है, अभी थोड़ा सा उसे शक आ जाता है मन में. डोंट यू वरी अबाउट दैम मिस. अभी एक इसने कहा अदर मैन कौन है, ग्लम फिसेड मैन उसको एक्सप्लेन करता है. नहीं इसमें इसके बारे में वरी मत करो, लाइक परेशान मत हो. ऑल मार्शल्स हैंडकफ देमसेल्व्स विद द प्रिजनर्स टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे. अब सारे मार्शल्स जो होते हैं वो अपने आप को है, अपने जो प्रिजनर है जिसको पकड़ना होता है उसके साथ अपने आप को बांध देते हैं कि वो प्रिजनर भाग ना जाए. सिर्फ उसको नहीं हैंडकफ करते हैं, अपने साथ कर लेते हैं, एक अपना डाल लेते हैं, एक उसका डाल लेते हैं कि वो जो प्रिजनर है वो भाग ना जाए. मिस्टर ईस्टन नोज हिज बिजनेस. अब मिस्टर ईस्टन को अपना काम पता है, वो सही कर रहा है, आप टेंशन मत लो. विल वी सी यू अगेन सून इन वाशिंगटन सेड आस्क्ड द गर्ल. अब गर्ल ने पूछा कि हाँ क्या हम दोबारा आपको वाशिंगटन में मिलेंगे, कितनी देर हो गया वाशिंगटन नहीं आया, हम सारे मिस कर रहे हैं, इसने ये पहले भी बताया था ना. नॉट सून आई थिंक, एंड सेड ईस्टन कहते लाइक नहीं इतनी सून नहीं, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर. अब कहता है मेरे बटरफ्लाई डेज जो है वो ना खत्म हो गया. बटरफ्लाई डेज मीन्स खुली आज़ादी के दिन खत्म हो गए हैं. अब मुझे लाइक नहीं, मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे. सो कुछ चीज़ें हैं जैसे दिस सेंटेंस को मार्क कर लो, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर. ये क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन आएगा. अब आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ आएगा बिकॉज हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा. सो थोड़ा सा रह गया, वैसे ज़्यादा नहीं रह गया, पर आपको समझ नहीं आएगा, अभी समझाऊंगा मैं बाद में. बस इसको मार्क कर लो, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर. अभी हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे वापस. आई लव द वेस्ट सेड द गर्ल इररेलेवेंटली. अब उसने इररेलेवेंटली में कुछ कहना था, पता नहीं था क्या कहना है, ऐसे ही बोल दिया. आई लव द वेस्ट, मुझे वेस्ट अच्छा लगता है. वेस्ट कहाँ पर है, जहाँ पर मिस्टर ईस्टन जॉब करता है वहाँ वो वेस्ट है. ईस्ट कहाँ पर है, जहाँ पर वाशिंगटन है, जहाँ पर उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर मिस फेयरचाइल्ड रहती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना. हर आइज वर शाइनिंग सॉफ्टली. अब मिस फेयरचाइल्ड की आइज बहुत अच्छे से सॉफ्टली शाइन कर रही थी. शी लुक्ड अवे आउट द कार विंडो. कार विंडो मीन्स उस कोच की जो विंडो थी, विंडो जो होती है उसकी सीट के साथ में विंडो थी, वो उससे बाहर दिखती है.
शी बिगैन टू स्पीक ट्रूली एंड सिंपली विदाउट द ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर। अब पहले वो बहुत सारे स्टाइल एंड मैनर से लाइक बहुत एलिगेंट टेस्ट से बोल रही थी, बहुत स्टाइल एंड मैनर से। अब यार जब बंदा फेमिलियर है, मिलता है, मुझे मुझे जानता है अच्छे से, अब उसने क्या करा, अपने सारी स्टाइल जो है वो छोड़ दिया। अब फ्रैंकली लाइक एक अपनी जो रियल वो है ना, रियल गर्ल है, उसके अपने रियल स्टाइल के साथ बोलने लग पड़ी। ग्लॉस उसने जब बुरा, हम जिस किसी को मिलते हैं कहते हैं ना, हाँ हाँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं, घर में आग की सीगा लाइक, है ना, थोड़ा सा। अब फ्रैंक हो गई, अब अच्छे से बात करने लग पड़ी। सो अपना स्टाइल छोड़ दिया उसने। अब कैसे बोलती है, मम्मा एंड आई स्पेंड द समर इन डेनवर। मम्मा, मम्मा मीन्स इसकी मॉम, और उसने मिस फेयरचाइल्ड ने, इन दोनों ने अपनी सारी समर्स जो थी डेनवर में बिताई, जहाँ पर अभी डेनवर वेस्ट में है, वॉशिंगटन ईस्ट में है। डेनवर में अब मिस्टर ईस्टन जो है वो जॉब करता है। मिस फेयरचाइल्ड डेनवर में अपनी समर बिताने आई थी। अब क्यों आई थी, इसने बताया अब कि मैं तो समर बिताने आई, अपने समर हॉलीडेज में आई थी। हॉलीडेज लिखना बस, स्पेंड द समर लिखना, बिकॉज हॉलीडेज इज नॉट अ कीवर्ड, ओनली द समर इज कीवर्ड। सो स्पेंड द समर इन डेनवर। शी वेंट होम अ वीक अगो बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल। थोड़ी सी फादर की तबीयत खराब थी, इसलिए वो चलेगी एक हफ्ते पहले। आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट। अब मैं अच्छे से रह सकती हूँ वेस्ट में, मुझे अच्छा लगता है वेस्ट में, खुश रह सकती हूँ, अच्छे से रह सकती हूँ वेस्ट में। आई थिंक द एयर हेयर एग्रीज विद मी। मुझे लगता है यहाँ पर जो मेरी एयर है मुझे सूट कर रही है, अच्छे मुझे एग्रीज विद मी। मनी इज एंड एवरीथिंग। अब उसने क्या कहा, मनी इज एंड एवरीथिंग, लाइक मनी सब कुछ नहीं होती, बट पीपल ऑलवेज मिस अंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड। कि हमेशा स्टूपिड रहते हैं, मनी सब कुछ नहीं होती, लाइक मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, लाइक ऐसी इररिलेवेंटली बोली जा रही थी। अब उसने टॉपिक चेंज कर एकदम से, मनी इज एंड एवरीथिंग बोलने लग पड़ी कि हाँ लाइक मनी सब कुछ नहीं होती, एंड पीपल मिसअंडरस्टैंडिंग, पीपल को लोगों को समझ नहीं आता, तो ऐसी यहाँ पर और स्टूपिड से रहते हैं वो लोग। सेम मिस मार्शल, मिस्टर मार्शल। अब ये भी सेंटेंस मार्क कर लो, जैसे अपने पहले मार्क किया था, मैं बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर, अब ये वाला सेंटेंस भी मार्क कर लो, सेम मिस्टर मार्शल ग्राउल्ड द ग्लम फेस्ड मैन। बताओ बताओ मुझे मिस्टर मार्शल, ऐसे इसने बोला। दिस इजंट क्वाइट फेयर। अभी अच्छा नहीं है। कौन कह रहा है, ग्लम फेस्ड मैन कह रहा है कि सही बात नहीं है। आई एम नीडिंग अ ड्रिंक, मुझे कुछ पीना है, लाइक शराब, लाइक आई वांट सम ड्रिंक। आई एंड हैवंट हैड अ स्मोक ऑल डे, मैंने स्मोकिंग भी नहीं की पूरे दिन। हैवंट यू टॉक लॉन्ग इनफ, अब कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर ली आप दोनों ने। टेक मी इन द स्मोकर नाउ वॉन्ट यू। अब कहता है मुझे स्मोकर में लेकर चलो, आई एम हाफ डेड फॉर अ पाइप, मुझे बहुत लाइक स्मोकिंग के लिए ज़रूरत हो गया, जैसे बर्दाश्त नहीं हो जा रहा, बहुत एडिक्शन है ना इसको स्मोकिंग की। सो इससे हमें ये पता लगता है ग्लम फेस्ड को बहुत एडिक्शन है। वो कहता मुझे रहा नहीं जा रहा, लाइक चलो चलो मुझे लेकर चलो वहाँ पर स्मोकर रूम में। स्मोकर रूम होता है, स्मोकर इज द स्मोकर रूम, वहाँ पर स्मोकिंग करनी, बिकॉज हमारे जैसे नहीं होता कहीं भी स्मोकिंग करनी शुरू कर दो ऐसे ही। सो दिस इज़ नॉट राइट। अब अब्रॉड में लाइक दे हैव इन फॉरेन कंट्रीज, उनकी ट्रेन में एक स्पेशल स्मोकर रूम होता है, आपने देखा ही होगा मूवीज़ में, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया हुआ है। सो स्मोकर रूम, वहाँ जाकर आप स्मोकिंग कर सकते हो ऐसे अपने इन द पब्लिक यू कांट स्मोक। सो टेक मी इन द स्मोकर रूम नाउ, स्मोकर नाउ वॉन्ट यू, नींद लेकर जाओगे मुझे, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे पाइप मीन स्मोकिंग पाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, मुझे लेकर चलो, अब बहुत ज़्यादा बातें कर लिए, इट्स नॉट फेयर। सो द बाउंड ट्रैवलर्स जो थे, बाउंड ट्रैवलर्स किनको कहा गया है, ग्लम फेस्ड मैन को और मिस्टर ईस्टन को। सो जो थे दे रोज टू देयर फीट, अब वो खड़े हो गए, अपने उठ गए, अपने पैरों पे आ गए, अब खड़े हो गए। ईस्टन विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस, उसकी थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की स्माइल थी उसके, सेम मतलब पूरे कन्वर्सेशन में उसके स्लो स्माइल ही थी ईस्टन के फेस में। आई कांट डिनाई अ पेटिशन फॉर टोबैको ही सेड लाइटली, इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट। अब ये लाइन भी मार्क कर लो, थर्ड लाइन हम बता रहे हैं, इट्स वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट। जो मैंने बीच में कहा था ना सेम मिस्टर मार्शल, वो इतनी नहीं आती, पर ऊपर वाली लाइन जो था, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर, और ये वाली लाइन जो है कि इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट, ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों लाइन्स में सेम क्वेश्चन बनता है, इन दोनों लाइन्स का सेम क्वेश्चन बनता है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस वक्त, पर आगे समझ आ जाएगा। गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड, ड्यूटी कॉल्स यू नो। वो कहती है अब हाँ हमें जाना पड़ेगा, जॉब है लाइक सो, और इसको मैं इसकी एक तो है, इसकी एक ही तमन्ना है टोबैको खाना है, ऐसे लाइक स्मोकिंग करनी है। सो अब मैं इसे मना नहीं कर सकता, सो मुझे जाना पड़ेगा। ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर फेयरवेल, अब उसने फेयरवेल के लिए हाथ मिलाने के लिए, बाय बाय करने के लिए इसने अपना हाथ बाहर निकाला, किसने, मिस्टर ईस्टन ने। इट्स टू बैड यू आर गोइंग नॉट गोइंग ईस्ट, अब तुम ईस्ट में नहीं आ रही, ईस्ट में लाइक ईस्ट, अब वाशिंगटन में नहीं आ रहे, ये बहुत बुरी बात है, लाइक हाँ अच्छा नहीं है, आना चाहिए आपको, ईस्ट में नहीं आ रहे। शी सैड रीक्लोथिंग हरसेल्फ विद मैनर एंड स्टाइल, अब दोबारा उसने मैनर और स्टाइल का, रीक्लोथिंग मीन्स दोबारा उसने अपने मैनर एंड स्टाइल में बोलना शुरू कर दिया।
पहले उसने बीच में उतार दिया था मैनर एंड स्टाइल अपना, और विदाउट द ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर बोल रही थी, अब उसने दोबारा बोलना शुरू कर दिया विद द मैनर एंड स्टाइल। बट यू मस्ट गो ऑन टू 11 वर्स आई सपोज, हाँ कि लाइक तुम्हें जाना ही पड़ेगा 11 वर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एंड आई मस्ट गो ऑन टू 11 वर्स, ये लाइक इट्स द बेस्ट सेंटेंस। अब सब कुछ समझ आएगा आपको, खत्म, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। यस सर, इसमें कहता कि हाँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा 11 वर्स में। द टू मैन साइडल डाउन द aisle into the smoker, अब वो चले गए आयल से और स्मोकर रूम में जो है चले गए। द टू पैसेंजर्स इन अ सीट नियर बाय, अब साथ में एक सीट थी, बड़ी सारी सीट्स होती है ना लाइक, सो आयल की उस दूसरी तरफ होगी या फिर बताया नहीं हुआ, साइड में नियर बाय एक सीट थी यहाँ पर कोई और दो पैसेंजर्स भी थे, और वो इनकी ज़्यादातर कन्वर्सेशन सुन रहे थे, हर्ड मोस्ट ऑफ द, उन्होंने सुनी थी दोनों ने। सो उनमें से एक कहता दैट मार्शल अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप, सम ऑफ दीज वेस्टर्न फेलोज आर ऑल राइट, या मास्टर जो था वो सॉरी मार्शल जो था वो अच्छा आदमी था। यहाँ पर कई वेस्टर्न फेलोज जो हैं अच्छे होते हैं, मुझे लगा था वह सारे वेस्टर्न फेलोज बड़े अच्छे नहीं होते, पर कई वेस्टर्न फेलोज अच्छे भी होते हैं। उनमें से एक कहता प्रिटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट इजंट ही, वो कहता थोड़ा सा यंग नहीं था, थोड़ा ईस्टर्न यंग था ना, थोड़ा बताया हुआ है ईस्टर्न वॉज यंगर, तो वो कहता कि कुछ ज़्यादा यंग नहीं था ऐसा, इतना बड़ा मार्शल की जॉब के लिए थोड़ा यंग नहीं था वो, इतना बड़ा ऑफिस संभालता है, जल्दी नहीं बन गया, बड़ा यंग नहीं था। वो कहता यंग एक्सक्लेम द फर्स्ट स्पीकर जो जिसने बोला था मार्शल इज अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप मतलब अच्छा आदमी है, मैन। सो कहते हैं ना चैप ब्रो मैन, लाइक इट्स अ स्लैंग लैंग्वेज मैन चैप। सो कहता यंग why oh didn't you catch on say did you ever know an officer to handcuff a prisoner to his right hand, अब यहाँ पर सारा सस्पेंस खुल जाता है। अब कहता कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कभी भी कोई मार्शल जो है अपना जो है हैंडकफ वो है अ प्रिजनर टू हिज लाइक, कभी किसी भी प्रिजनर को उसके राइट हैंड से हैंडकफ करता है, अपने राइट हैंड से किसी प्रिजनर का हैंडकफ करता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई भी मार्शल हैंडकफ करता है किसी प्रिजनर को, ऑब्वियसली प्रिजनर का लेफ्ट हैंड होता है कि वो अपने खुद खोल ना दे, क्योंकि राइट हैंड तो सबका चलता होता है, सॉरी प्रिजनर का राइट हैंड होता है ये, सॉरी क्लियर ऑफ, मुझे दोबारा समझाने तो अच्छे से, कि जब भी कोई मार्शल हैंडकफ करता है किसी भी प्रिजनर को, वो प्रिजनर का राइट हैंड होता है और मार्शल का लेफ्ट होता है, क्योंकि मार्शल का राइट हैंड खुला होगा, तो मार्शल अपने राइट हैंड से सब चीज़ें कर सकता होगा, पर प्रिजनर जो है उसका राइट हैंड बंधा होगा तो प्रिजनर अपने राइट हैंड से कुछ नहीं कर सकता। सो प्रिजनर का राइट हैंड होता है और मार्शल का लेफ्ट हैंड होता है हमेशा। पर इसमें क्या उसने बताया कि जो मिस्टर ईस्टर्न था उसका कौन सा हैंड था, हमने पहले देखा हुआ है ना, मिस्टर ईस्टर्न ने लेफ्ट हैंड से क्लैस्प की थी फिंगर्स, क्योंकि उसका राइट हैंड बंधा हुआ था। मिस्टर ईस्टर्न का राइट हैंड था और जो ग्लम फेसिड मैन था उसका लेफ्ट हैंड था। इसका मतलब ग्लम फेसिड मैन एक्चुअल मार्शल था और मिस्टर ईस्टर्न प्रिजनर था। समझ आया? मिस्टर ईस्टर्न का राइट हैंड था इसलिए वो प्रिजनर था, क्योंकि प्रिजनर्स का राइट हैंड होता है, और जो ग्लम फेसिड मैन था उसका लेफ्ट हैंड था, इसलिए वो प्रिजनर नहीं था, वो रियल मार्शल था, बिकॉज मार्शल्स का लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, जो इसने कहा है दैट मार्शल्स अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप, इसका मतलब था कि वो मार्शल कितना अच्छा था, मतलब ग्लम फेसिड मैन जो असली मार्शल है वो कितना अच्छा था, उसने कितनी मदद की, ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर जो है सेकंड थीम है वो ह्यूमैनिटी का है, कि उसने कितनी अच्छी एक उसकी हेल्प की, कि उसको मिस फेयरचाइल्ड के सामने उसका पुराना कोई दोस्त मिल गया, उससे बचाने के लिए कितनी हेल्प की कि उसने ये कह दिया कि वो मार्शल है। ठीक है, कि उसको ये ना लगे कि वो प्रिजनर है और वो लाइक होना अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सो उसको बचाने के लिए उसका लाइक रखने के लिए ऑनर, उसने क्या किया, उसको कह दिया कि ये मार्शल है, मतलब मार्शल इज अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप। जो फर्स्ट मैन था वो किसको कह रहा था कि हाँ जो ग्लम फेसिड मैन है कितना अच्छा था, वेस्टर्न फेलोज आर ऑल राइट, कई वेस्टर्न फेलोज कितने अच्छे होते हैं, वो ग्लम फेसिड मैन के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने कहा है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर मैंने आपको कहा था लाइन को करके रखना, माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर। अब ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन आता है आपको कि एक्सप्लेन माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर। इसको एक्सप्लेन करना, इसको हम करेंगे कि ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि असली में वो क्या कहना चाह रहा था और मिस फेयरचाइल्ड जो है उसको क्या समझ आई। सो माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर, वो कहता कि अब मेरे बटरफ्लाई डेज आर ओवर, माई फ्री डेज आर ओवर ना, आई एम गोइंग टू द 11 वर्स प्रिजन, ना आई विल बी देयर इन द प्रिजन फॉर 7 years, देयरफॉर माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, अब मैं खुला नहीं घूम सकता, सो मुझे अब जाना पड़ेगा प्रिजन में, इसलिए मेरे बटरफ्लाई डेज ओवर हो गए हैं। बट मिस फेयरचाइल्ड को लगा कि ये कह रहा है कि अब मेरे बटरफ्लाई डेज ओवर हो गए, मतलब कि मेरे अब खुले अच्छे से यार मस्ती करने के दिन खत्म हो गया है, टू हैव फन, वो वाले दिन खत्म हो गए हैं, बिकॉज आई एम नाउ अ मार्शल, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब मिल गई है, एंड आई हैव टू वर्क टू गेट मनी, टू अर्न मनी, देयरफॉर माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर।
ये कंट्रास्टिंग थिंग थी। दूसरी थी जब उसने कहा सेम मिस्टर मार्शल, अब उसने पहले मिस फेयरचाइल्ड ने क्या बोला था, मनी इजंट एवरीथिंग बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड। अब वो कहती सेम मिस्टर मार्शल, अब उसने उसको ताना मारा, उसने एक सार्केस्टिकली जो है ग्लम फेसेड मैन ने ईस्टर्न को कहा कि हाँ तुम ईस्टर्न, मिस्टर ईस्टर्न ने असली काउंटर फीटिंग मिस्टर ईस्टर्न ने की थी, बिकॉज असली में तो मिस्टर ईस्टर्न जो था वो प्रिजनर था। तो इसलिए उसने कहा अब बताओ बताओ, सार्केस्टिकली कल कहा मिस्टर मार्शल कि हाँ तुम वो, अब तुम्हारी जो है जो तुम्हें जानती है वो कह रही है कि मनी सब कुछ नहीं होती, तुम तो मनी सब कुछ नहीं होती और तुम काउंटर फीटिंग कर रहे हो, तुम मनी के लिए चोरी चोरी कर रहे हो, ये गलत क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो। ठीक है, सार्केस्टिकली कहा है उसको, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी मिस्टर मार्शल इतना ज़्यादा नहीं आता, पर आ सकता है, थोड़ा सा समझ लेना, लाइक ज़्यादा कॉमन नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो ये आएगा। ओके, सो अगला जो सेकंड, फर्स्ट हमने वो पढ़ा, सेकंड जो था मिस्टर सेम मिस्टर मार्शल, वो इतना ज़्यादा ठीक ठाक है, जो इतना ज़्यादा वो नहीं है जिसको हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे इस पर। थर्ड है क्या, सो थर्ड लाइक वन कोई मिस तो नहीं हो गया मेरा, ओके, इट्स द वन, यहाँ पर मिस हो गया मेरा थिंग, इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट। अब ये जो टॉप में पैरा है, आई कांट डिनाई अ पिटिशन फॉर टोबैको, अब वो कहता है इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट। वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट का मतलब ये है कि अगर वो पिटिशन डिनाई कर देगा तो वो और ज़्यादा उसको रुकना पड़ेगा। इसका मतलब था मिस्टर ईस्टर्न का मतलब था कि अगर इफ आई विल डिनाई द पिटिशन फॉर टोबैको, सो आई विल हैव टू स्टे हियर इन फ्रंट ऑफ मिस फेयरचाइल्ड, और बाय चांस इट कैन हैपन कि मेरा जो है वो लाइक मेरा भांडा फूट जाएगा, लाइक इट कैन हैपन कि माई जो है सीक्रेट जो है वो रिवील हो जाएगा, और द बीन्स विल बी स्पिल्ड, माई सीक्रेट विल बी रिवील्ड दैट एक्चुअली आई एम द प्रिजनर। सो ये मेरा फ्रेंड है अनफॉर्चुनेट। अब यहाँ पर कौन है मिस्टर ईस्टर्न के हिसाब से अनफॉर्चुनेट मिस्टर ईस्टर्न खुद है कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, ये मेरा फ्रेंड, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो शायद मैं बच जाऊँ और यहाँ पर कन्वर्सेशन खत्म हो जाए, अगर मैं बैठा रहूँगा चाहे मेरा लाइक मुझे पता ना लग जाए उसे कि मैं ही असली प्रिजनर हूँ, मुझे डर लग रहा है, इसलिए वो कहता है मेरा ही, मैं अपना, ठीक है, मेरा फ्रेंड क्या है, ये पिटिशन मेरी फ्रेंड है। सो फ्रेंड क्या थी, टोबैको, स्मोकिंग इज द फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट कौन है, मिस्टर ईस्टर्न, पर मिस फेयरचाइल्ड को लगा कि ये ही स्मोकिंग इज द फ्रेंड ऑफ द ग्लम फेस्ड मैन, उससे ये लग रहा है, पर कहना मिस्टर ईस्टर्न ये कह रहा है। आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ओके, और लास्ट वन, आई मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ। अब उसे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही है, मस्ट गो ऑन, मुझे जाना ही है, मैं भाग नहीं सकता अब, क्योंकि आई एम द प्रिजनर, अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, एंड आई मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ प्रिजन। सो दीज वर द थ्री कंट्रास्टिंग। अब वो क्या समझ रही है कि हाँ मुझे अब इसको लेकर जाना पड़ेगा, हाँ मुझे जाना ही चाहिए, जाना पड़ेगा मुझे लेवनवर्थ, बिकॉज इस प्रिजनर को जाकर वहाँ पर जमा करना है। सो यू हैव टू send him to the like I have to take him to the prison, to the pen in the Leavenworth, therefore I have to go to Leavenworth। पर असली में वो क्या कह रहा है इन द रियलिटी कि उसे जाना पड़ेगा बिकॉज ही इज द एक्चुअल प्रिजनर। सो दीज वर थ्री, आई मस्ट गो ऑन टू लेवनवर्थ, उसके ऊपर दिस इज द वन फ्रेंड, इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट, उसके ऊपर माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक इन तीनों में से एक तो पक्का लाइक 100% आएगा ही आएगा। इन तीनों में से जब भी आपको एक्सट्रैक्ट आएगा, इन तीनों में से एक आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो गर्ल है मिस फेयरचाइल्ड की, उसके जो एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, टाइम टू टाइम उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं वो, और ज़्यादा बाकी आप करोगे पूरा उसमें से और क्वेश्चन जो है वो तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ये इंपॉर्टेंट सम है कि ये तो बनने हैं। सो थैंक यू, आप मेरे साथ आपने समझी हार्ट्स एंड हैंड्स, होप आपको समझ आई होगी। एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड सो अगर आप चाहते हो कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको डाउटफुल है, मैंने ऐसे 2 चैप्टर की डाल चुका हूँ इससे पहले, दैट वर वन वॉज द माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी ओवंस, और उसके पहले थी ओल्ड मैन एट द ब्रिज बाय लाइक आई डोंट नो व्हाट द ऑथर, मैं भूल गया, नो प्रॉब्लम। सो अर्नेस्ट हेमिंगवे, यस अर्नेस्ट हेमिंगवे, बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। सो ये 3 हो गई। अब इसके आगे इससे अलावा आपको कुछ भी इसके सो है लाइक इन ओके, ये 3 के अलावा अगर आपको कोई भी चाहिए स्टोरी जो आपको पहले चाहिए, बिकॉज यू आर डाउटफुल, लाइक यू आर नॉट, आपको अच्छे से समझ नहीं है ये वस्तु, आप समझना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट कमेंट मी एंड आई विल, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टोरी आफ्टर दिस दैट आई विल ब्रिंगिंग। सो वो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, इसके सबसे बाद आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो for that story. So stay tuned to me, like you have, if you want to watch such content of ICSE, like so short stories, and you can, if you want to watch, so please subscribe to this channel and like this video if you like, अगर अच्छी लगी है तो like करना, and please comment me आपको क्या डाउट्स हैं आपके, I will clear them all. Thank you.